ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ قوم ایک، مذہب ایک، سجدہ ایک ہستی کو، مانا خدا کے آخری نبی کو۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ماہ رمضان ایک انعام کی صورت ہمیں ملا ہے، جہاں ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کے تقاضوں کو، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ناظرین آج پھر ایک خاص ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ٹی وی کی ٹیم دارالسرور باب دکن مدینۃ الاولیاء یعنی برہان پور میں موجود ہے۔ برہان پور ایک تاریخی اور تہذیبی شہر، ایک ایسا شہر جہاں پر ماہ رمضان میں یہاں کے شب و روز دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین یہ پروگرام کے پہلے سے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ برہان پور کی تاریخی اور تہذیبی روایت کیا ہے۔ برہان پور کو مدینۃ الاولیاء، دارالسرور اور باب دکن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برہان پور مدھیہ پردیش کے جنوبی مغربی حصے میں مہاراشٹر کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ 21 درجہ شمال اور 72 درجہ مشرق میں خط سرطان کے نیچے واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس کی اونچائی 1723 فٹ ہے۔ برہان پور کو مشترکہ تہذیب کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی تاریخ 610 سال قدیم ہے۔ یہاں موجود قدیم یادگاریں اس شہر کے عظیم الشان ماضی کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مدینۃ الاولیاء کے نام سے مشہور شہر برہان پور کی بنیاد 1401 میں ممتاز عالم دین حضرت زین الدین داؤد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فاروقی بادشاہ ملک نصیر خاں فاروقی کی خواہش پر حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب کرتے ہوئے رکھی تھی، اور جب یہ خوبصورت شہر بن کر تیار ہو گیا تو فاروقی بادشاہ ملک نصیر خاں فاروقی نے 1407 میں یہاں پر آبادی کو منتقل کیا۔ اس سے پہلے تاپتی ندی کے کنارے اس مقام پر جہاں برہان پور شہر آباد ہے، یہاں وسانہ نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ تاریخ میں درج ہے کہ خاندیش حکومت کا بانی ملک راجہ حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کا زبردست معتقد تھا۔ وہ اپنی زندگی میں یہ کارنامہ تو نہیں کر سکا، لیکن اس نے اپنے انتقال سے قبل اپنے فرزند ملک نصیر خاں فاروقی کو دریائے تاپتی کے کنارے پیر و مرشد کے نام سے شہر بسانے کی وصیت کی۔ چنانچہ جب ملک نصیر خاں فاروقی خاندیش کے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے اپنے والد کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے دریائے تاپتی کے کنارے پیر و مرشد حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہر کو آباد کرنے کے لیے آپ کے ہی خلیفہ ممتاز صوفی
हजरत ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों शहर की बुनियाद रखवाई। मलिक नसीर खां फारूकी ने दरिया ताप्ती के एक किनारे हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बुरहानपुर और दरिया ताप्ती के दूसरे किनारे हजरत ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ज़ैनाबाद को आबाद किया। इस तरह दरिया ताप्ती के दोनों किनारों पर दोनों शहर आज भी आबाद हैं। मलिक नसीर खां फारूकी ने बुरहानपुर को खानदेश का दारुल हुकूमत बनाया। इस तरह इस शहर पर 225 साल तक फारूकी बादशाहों की हुकूमत रही। फारूकी बादशाहों का सिलसिला खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से मिलता है। बुरहानपुर पर फारूकी बादशाहों के अलावा मुगल, आसिफ जाही, मरहटा और अंग्रेजों की हुकूमत रही है। मुल्क की आजादी के बाद बुरहानपुर को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। मौजूदा में बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है, लेकिन इसका शुमार मध्य प्रदेश के पसमानदा अजला में होता है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के उन शहरों में सरे फहरिस्त है जहां इस्लामी तालीमात और इस्लामी शार सर चढ़कर बोलता है, और जब माह रमजान के अय्याम आते हैं तो यहाँ की रौनक दोबाला हो जाती है। बुरहानपुर की इस तहजीबी रिवायत पर यहाँ के लोगों को फख्र है। लगभग 125 साल तक फारूकियों ने इस शहर पर हुकूमत की और इस इलाके को खानदेश की राजधानी भी बनाया। खानदेश यहाँ से, बुरहानपुर से यहाँ से सरहदें शुरू होती थी, तो नंदुरबार और पाटन वाला इलाका पूरा एरिया खानदेश में होता था। लगभग फारूकी दौर के पीरियड में 10,980 मुरब्बा मील इसका रकबा था, और 13 हुक्मरानों ने, फारूकी हुक्मरानों ने इस शहर पर हुकूमत की, इस इलाके पर हुकूमत की। उसके बाद लगभग 120 साल मुग़लों का दौर इस शहर ने देखा। फिर कुछ अरसा मराठों के तेवर भी देखे, हैदराबाद के आसिफ जहाँ का भी दौर इस शहर ने देखा। फिर अंग्रेज़ों की जालिमाना हुकूमत भी इस शहर ने देखा। यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं, जगह जगह हमें मसाजिदें नज़र आती हैं, मदरसे नज़र आते हैं। और इस्लाम के ताल्लुक़ से अगर बताना चाहूँ मैं आपको, तो यहाँ मोहल्लों में हमें 2-2, 3-3 मस्जिदें, मदारिस दिखाई देते हैं। मस्जिदें भी भरी भरी दिखाई देती है, और रमज़ान में तो और ज़्यादा चहल पहल हमें दिखाई देती है। इब्तिदा से ही जो है तो मुश्तरका तहज़ीब यहाँ पर रही है, और ऐसे मौके पर ख़ास तौर से रमज़ान जैसे त्यौहारों के मौके पे ये तहज़ीबें देखने को मिलती है, सामने आती है। और जहाँ तक माह रमज़ान के महीने की बात है, तो हम सभी जानते हैं कि बाबरकत महीना होता है, नूरानी महीना होता है। ये बुरहानपुर की सहराएँ जो आम दिनों के अंदर भरी हुई होती है दिन में, और माह रमज़ान में आप देखेंगे कि दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ से पहले तो सड़कें सूनी और वीरान नज़र आती है, लेकिन दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ के बाद से जो बाज़ारों में एक हुजूम की शक्ल में लोग जो मस्जिदों से, घरों से जो है तो अफ्तार की तैयारी के लिए निकलते हैं, तो वो मंजर ही कुछ देखने के लायक होता है। बुरहानपुर को तारीख के औराक में मदीनतुल औलिया के नाम से याद किया जाता है। इस शहर में अहले सलासिल के बुजुर्गों के आस्थाने सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। अहले सलासिल के बुजुर्गों की इस्लाम की नश्र इशात में नुमाया खिदमात के सबब ही इसे मदीनतुल औलिया कहा गया है। यहाँ पर हुक्मरां रहे बादशाहों ने अपने एतबार से न सिर्फ खानदेश और बिलखुसूस बुरहानपुर को तरक्की की मंजिलें अता की, बल्कि यहाँ पर इस्लामी शार को फरोग देने के साथ फन तामीर के भी बेहतरीन नमूने पेश किए हैं। बुरहानपुर की ये पुरशिकोह जामा मस्जिद जो संग खारा से बनी हुई है, इसको आदिल शाह इब्न मुबारक शाह फारूकी ने तामीर किया था। ये न सिर्फ फन तामीर का बेहतरीन नमूना है, बल्कि इसे मुल्क की कौमी यकजहती की अलामत के तौर पर भी पेश किया जाता है। मस्जिद की तामीर का काम 1590 में शुरू हुआ और 1601 तक जारी रहा। 1601 में मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बुरहानपुर पर कब्जा करने के बाद मस्जिद का काम रुक गया। अगर यह मस्जिद मुकम्मल हो गई होती तो इसकी खूबसूरती कुछ और होती। अकबर ने बुरहानपुर पर कब्जा करने के बाद मस्जिद के बाएं मीनार के निचले हिस्से पर जो कतबा लिखवाया था वो आज भी मौजूद है।
बुरहानपुर की शाही जामा मस्जिद मुख्तलिफ खूबियों की मालिक है। पूरी मस्जिद में संग खारा यानी ब्लैक हार्ड आयरन स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। हार्ड आयरन स्टोन पर संग तराशी को नामुमकिन कहा जा सकता है, लेकिन मस्जिद के कारीगरों ने इस हार्ड आयरन स्टोन पर इस खूबी से नक्काशी की है कि देखने वाला हैरत में रह जाता है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मजहब के लोगों की अपनी इबादत गाह होती है और इन इबादत गाहों की सजावट भी लोग अपने अपने नजरियात के मुताबिक ही करते हैं। मजहबी रवादारी की बातें लोग जरूर करते हैं, लेकिन किसी भी मजहब के अकीदतमंद ने अपनी इबादत गाह में अपनी मजहबी जबान के अलावा दूसरे मजहब की जबान को आज तक दाखिल नहीं होने दिया। लेकिन बुरहानपुर की ये तारीखी मस्जिद इन मानों में दुनिया की तमाम मस्जिदों से मुख्तलिफ है कि इसमें फारूकी बादशाहों ने अपनी मजहबी जबान यानी अरबी के साथ यहाँ के हिंदू भाइयों की मजहबी जबान संस्कृत को भी जगह दी है। मस्जिद के दाहिनी तरफ के मेहराब में जहाँ खालिक कायनात का पैगाम और मस्जिद की तारीख अरबी जबान में रकम की गई है, वहीं इसे संस्कृत जबान में रकम करके फारूकी बादशाह आदिल शाह इब्ने मुबारक शाह ने हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की वो इबारत रकम की है जिसकी नज़ीर हिंदुस्तान तो क्या दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ये बुरहानपुर की शाही जामा मस्जिद है, जिसे फारूकी दौर के शहंशाह आदिल शाह इब्न मुबारक शाह फारूकी ने 1590 ईस्वी 997 हिजरी में तामीर कराया। इसके तामीर में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया, ये मांडोगढ़ से लाया गया और पत्थर की जितनी क्वालिटीज़ होती हैं सब में हार्ड ये स्टेनलेस स्टील टाइप होता है, संग खारा ये ब्लैक आयरन स्टोन से कहते हैं। इसकी तामीर की कई खूबियाँ हैं, जिसमें एक मेन खूबी यह है कि इसके पिलर्स जो हैं उसको चौड़ा करके सीलिंग उसके साथ ही बनाई गई है, अलहदा से इसकी कोई सीलिंग नहीं है, इसलिए बिना छत की मस्जिद से ये मशहूर है। और दूसरी ये है कि इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसकी तारीख जो है अरबी और संस्कृत दो ज़बानों में लिखी गई है। संस्कृत आमतौर पर हिंदुओं की एक धार्मिक ज़बान है। मुस्लिम शहंशाहों ने अपनी कुशादा दहनी का सबूत देते हुए उसको अपनी इबादतगाह में जगह देकर हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद का एक मरकज़ उसको क्या बनाया। माह रमज़ान में आमतौर पर मतलब तमाम ही मसाजिद में रौनक बढ़ जाती है। इसी तरीके से शाही जामा मस्जिद में भी हर नमाज में रोज़ाना की बनस्बत कसीर तादाद में नमाज़ें होती हैं। जुमा में करोड़ तक नमाज़ें होती हैं। इफ्तार के टाइम भी और सहरी के टाइम भी काफ़ी रौनक रहती है। जहाँ तक हमारी तहज़ीबी रिवायतों का ताल्लुक़ है, और हमारे फ़ारूकी बादशाह रहे हों या मुग़ल शहंशाह रहे हों, तो इनके यहाँ आप देखेंगे तारीख़ बताएगी कि इन तमाम बादशाहों ने, चाहे मुग़ल हों चाहे फ़ारूकी हों, इस मुश्तरका तहज़ीब की बुनियाद मैं समझता हूँ कि इन बादशाहों ने डाली है। फ़ारूकियों का भी अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ भी मिलेगा। इन्होंने बहुत सारी संस्कृत की किताबों का तराजुम करवाया। बुरहानपुर में आपसी भाईचारा मोहब्बत शुरू से चला आ रहा है। इसको कायम रखने के लिए सभी हम लोग आपस में मिलकर अफ्तार पार्टी का आयोजन करते रहते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं आपके शहर बुरहानपुर में। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि बुरहानपुर में अफ्तार और सहर को लेकर किस तरह के खास बाजार लगते हैं, लेकिन उससे पहले से छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बुरहानपुर में। बुरहानपुर एक तारीखी और तहज़ीबी के शहर के साथ एक ऐसा शहर है जहाँ पर रमज़ान की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं जिस बाज़ार को, एक बुरहानपुर का इकबाल चौक है, जहाँ पर रमज़ान के वक्त में अगर हम अफ्तार की ख़रीदारी की बात करें तो इस कदर भीड़ होती है कि रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर किस तरह की खास रौनक है, आइए डालते हैं एक नज़र। खुले दरवाजे रमजान आ गया। बुरहानपुर को कौमी यकजहती का शहर कहा जाता है। इस शहर को अगर मुस्लिम सूफियों ने अपनी रियाजत का मस्कन बनाया तो हिंदू संतों और जोगियों के लिए ये तप भूमि रही है। बुरहानपुर को अजूबों का शहर भी कहा जाता है। अकबर ने इस शहर पर कब्जा किया तो दक्कन पर निगाह रखने के लिए अब्दुर रहीम को बुरहानपुर का सूबेदार मुकर्रर किया था। 1611 में बुरहानपुर में
जब पानी की किल्लत महसूस हुई और नमाजियों को पानी की कमी के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो अब्दुल रहीम ने ईरान के इंजीनियरों की मदद से सतपुड़ा की पहाड़ियों में पानी का जखीरा तलाश किया और ज़ेर ज़मीन नहर खुदाकर शहर को पानी मुहैया करने के साथ शाही मस्जिद में नमाजियों को पानी मुहैया करने का फैसला किया। अब्दुल रहीम ने 4 साल की मुद्दत में 1615 में इस ज़ेर ज़मीन नहर को तामीर करवाया। अब्दुल रहीम खाने खाना ने इस नहर का नाम नहर खैर जारिया रखा था, लेकिन बाद के अहद में इसका नाम तब्दील होकर पहले खूनी भंडारा हुआ और अब इसको कंडी भंडारा के नाम से पुकारा जाता है। ज़ेर ज़मीन नहरों का चलन हिंदुस्तान के अलावा ईरान में भी ज़माने कदीम में हुआ करता था, लेकिन अब बुरहानपुर की ये नहर अपने तर्ज की दुनिया की वाहिद नहर है जो बाकी है और इससे शहर के लाखों लोगों को पानी सप्लाई किया जाता है। इस नहर में जमीन के नीचे से चश्मे बहने के अलावा दीवारों से बूंद बूंद पानी टपकता है और ये पानी नीचे जमा होता है तो हवा के दबाव से आगे बढ़ता है। आज के अहद में पानी की सप्लाई को बिजली के बगैर नागुज़ीर समझा जाता है, लेकिन अब्दुल रहीम खाने खाना ने 1615 में जिस नहर खैर जारिया को तामीर किया था, इसमें आज भी पानी की सप्लाई के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती है। अलबत्ता सयाहों के नीचे जाने के लिए लिफ्ट के इस्तेमाल के लिए बिजली की जरूरत होती है। सयाह जब लिफ्ट से नीचे उतरकर इस ज़ेर ज़मीन नहर को देखते हैं तो इनकी ज़बान से यही निकलता है कि ये किसी अजूबे से कम नहीं है। अब पूरे वर्ल्ड में हमारा बुरहानपुर ही ऐसा एक ऐतिहासिक नगर है जहां इस प्रकार की धरोहर हमने बचा के रखी है और आज भी इसका पानी 8 वार्डों में करीबन 1 लाख जनता पानी रोज़ प्रतिदिन इससे पीती है। आज भी ये जीवित है, यही हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हम इसका संरक्षण संवर्धन का कार्य और तेजी से कर रहे हैं। बुरहानपुर को मदीनतुल औलिया कहा जाता है। इस शहर के लोगों का इस्लामी तालीमात से ताल्लुक सूफिया के जरिए से ही हुआ है। यही वजह है कि इस शहर को तारीख के औराक में सूफिया की सरजमीन के नाम से भी याद किया गया है। माह रमजान में यहाँ के शब रोज देखने से ताल्लुक रखते हैं। दिन में जहाँ आम शाहराहों पर खामोशी रहती है, वहीं शाम होते ही शहर का माहौल नूरानी हो जाता है। इस शहर को मसाजिद के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में माह रमजान के आते ही दिन रात इस तरह से नूरानी माहौल में ढल जाते हैं कि देखने वाले अश अश कर उठते हैं। रात की बात की जाए तो पूरी रात नमाजियों की चहलकदमी से गूंजती है। बुरहानपुर में अगरचे अब हुक्मरानों के अहद का खात्मा जरूर हो गया, लेकिन इसकी रिवायत आज भी इस शहर में कायम है। यहाँ पर दस्तरखान को कुशादा रखने की रिवायत है। बुरहानपुर में इफ्तार के लिए कई बाजार लगते हैं। असर की नमाज के बाद रोजादार बाजार की जानिब जाते हैं और अपनी पसंद की अशिया को बाजार से लाकर दस्तरखान को सजाते हैं। बाजार में रोजेदारों की इतनी भीड़ होती है कि रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि गर्मी की शिद्दत और 15 घंटे से ज्यादा वक्त का रोजा होने से लोग ये समझते थे कि बाजारों में रौनक कम होगी, लेकिन इसके बावजूद रोजेदारों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बाजार में चिकन पिज्जा, अंडे का फंडा और मावा जलेबी बहुत मकबूल है। बाजार में मुख्तलिफ अक़साम के फलों के साथ खजूरों की बहुत से वैरायटी भी मौजूद हैं। जब मस्जिद से मुअज्जिन अरबी में इन कलमात को माइक से अदा करता है तो इसकी आवाज सुनकर ही रोजेदार अपना रोजा खोलते हैं। यहाँ के जो मुसलमान हैं वो पावर लूम के ऊपर ही मतलब कारोबार करते हैं, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो महल्ले महल्ले मतलब ये माइक के अंदर रोज़े की इफ्तार की मतलब वो तकबीर कही जाती है, या साहिबु इफ्तरू रहमकुमुल्लाह कि मतलब रोज़े का टाइम हो गया, आप अपने अपने घरों में रोज़ा खोल लीजिए। उस एतबार से मतलब ये मस्जिदों के अंदर ऐलान किया जाता है।
کیونکہ اس سال رمضان تھوڑا سا گرمی کے موسم میں آیا ہے تو دن کا وقت تھوڑا سا ماحول تھوڑا سکون کا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی روزہ افطار ہوتا ہے اور روزے کا مطلب جو ہے لوگ روزہ افطار کر کے اپنے جو ہے گھروں سے عبادت گاہوں سے سب نکلتے ہیں تو بازاروں میں کافی رونق اور چہل پہل ہو جاتی ہے۔ افطار کے لیے اسپیشل ماوا جلیبی ہے، اسپیشل ماوا باٹی ہے، دودھ کا حلوہ ہے اور ماوے کی مٹھائیاں ہیں، اور ماوا جلیبی کے علاوہ سادی جلیبی بھی بناتے ہیں ہم لوگ، پیڑے وغیرہ بھی ہیں۔ الحمدللہ تیاری تو 2-4 دن پہلے سے کرنا پڑتی ہے اور انتظار 11 مہینے رہتا ہے اس کا، اور تیاریاں کافی کرنا پڑتی ہیں اس کی۔ یہ اس میں آئس کریم فالودہ وغیرہ بڑھیا کوالٹی رہتی ہے جو رمضان المبارک کے لیے اور اچھے طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ داروں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور اس کے پرپس ایک بزنس میں کاروباروں میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے۔ روزے کے اس لیے اسپیشل جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا دہی بڑے جو ابھی اسپیشل چل رہا ہے، ٹھنڈا ماحول تھوڑا گرمی میں گرم کا ہے اس حساب سے، اور ایک نمبر پہ فالودہ بھی ہمارے میں مل جاتا ہے۔ برہان پور ایک تاریخی اور نوابی شہروں کی گنتی میں آتا ہے۔ یہاں کے دسترخوان جو ہے وہ بہت وسیع ہوتے ہیں، اور خاص کر ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا دسترخوان چاہے وہ مساجد میں ہو یا گھروں میں ہو بہت وسیع ہوتا ہے۔ اس دسترخوان کے اوپر ہر وہ نعمت ہوتی ہے جو ایک روزہ دار کے لیے ضروری ہے۔ تو جیسی برہان پور کی تاریخی اور مغلیہ روایت رہی ہے ویسی روایت کے مطابق برہان پور کا دسترخوان بھی ہے جو بہت وسیع ہے۔ جی دیکھو میں سعودی میں جاب کرتا ہوں، لیکن رمضان کے مہینے میں برہان پور میں ہی میں رمضان منانا پسند کرتا ہوں۔ میرے شہر کا کچھ ماحول ہی کچھ ایسا رہتا ہے، اور روزے افطار یہ دیکھیے آج ماحول رمضان کی بات ہی کچھ الگ ہے۔ اس طرح مزہ لینا۔ ماہ رمضان میں برہان پور میں دسترخوان کو سجانے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بھی کوشش ہوتی ہے، اور یہ کوشش اس بات کے لیے ہوتی ہے کہ ان کے دسترخوان پر زیادہ سے زیادہ مہمان آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین گھروں میں افطار کی تیاریاں کرتی ہیں اور مرد بازار سے مختلف اقسام کی اشیاء لے کر جاتے ہیں اور دسترخوان کو سجاتے ہیں۔ برہان پور میں ماہ رمضان میں خواتین عام طور پر ظہر کی نماز کے بعد افطار کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ گھر میں جتنے لوگ اتنی ہی فرمائشیں ہوتی ہیں، اور ان فرمائشوں کو پورا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے خواتین اپنی عبادت کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سارے کام کرتی ہیں تاکہ عبادت بھی ہو جائے اور گھر کے تمام افراد کی خواہشوں کا احترام بھی باقی رہے۔ خواتین گھروں میں پاپڑ، بھجیا، فروٹ چاٹ کے علاوہ شامی کباب بناتی ہیں، جبکہ مرد بازار سے دوسرے سامان لاتے ہیں۔ برہان پور میں مساجد میں افطار بھیجنے کے ساتھ یہاں کے مہمان نوازی بھی بہت مشہور ہے۔ عام دنوں میں یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی کا ثبوت تو دیتے ہی رہتے ہیں، جب ماہ رمضان کے ایام آتے ہیں تو ان کے دسترخوان اور کشادگی اختیار کر لیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ برہان پور کے کسی بھی گھر میں جائیے، آپ کو دسترخوان پر مختلف اقسام کی اشیاء کے ساتھ کھچڑی اور انگور دانے ضرور ملیں گے۔ دوپہر سے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں، بچوں کی فرمائشیں رہتی ہے روز الگ الگ ڈشز بنانے کی، تو یہ سب بناتے ہیں ہم۔ کبھی چکن رول، کبھی اسپرنگ رول، کبھی ویج پکوڑا، کبھی سموسا، ٹکیا، بھجیا، یہ سب بناتے ہیں، اور الگ الگ فروٹس بھی۔ تو کیا ساری چیزیں گھر پہ ہی بنتی ہیں، کچھ بازار سے بھی لے آتی ہیں؟ نہیں، گھر پہ ہی بنتی ہیں ساری چیزیں، بازار کا کھانا پسند نہیں کرتے، اصل میں گھر کا ہی کھانا پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ جنرلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ افطار میں جو نان آئلی چیزیں ہیں جس سے جو نقصان نہ کریں ایسی چیزیں، فروٹس وغیرہ ہم لوگ لے کے آتے ہیں، اور فروٹ کاٹ کے جو تربوز ہے جیسے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم پہ ٹھنڈا ہو جائے، اور جو جنک فوڈ ہے اس کو ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ باہر سے کچھ ایسے جو تلی ہوئی چیزیں یا ایسا بیکری والے آئٹم ان کو اوائڈ کرتے ہیں۔ گھر میں ایسے جو پروٹین والے جو پروڈکٹس ہیں، فروٹس وغیرہ ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ نہ۔ 30 دن میں ہم الگ الگ ویرائٹی ڈیلی بناتے ہیں، کبھی چھولے بھٹورے، کبھی چنے، کبھی ایسا پاپڑ وغیرہ، کباب وغیرہ، اس میں بھی بہت سی ویرائٹیز رہتی ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں۔ عبادت تلاوت میں ٹائم ٹو ٹائم نماز پڑھیے، اور پھر جب افطاری کا وقت ہو تو اپنا کام کر لیجئے، قرآن شریف بھی پڑھیے بیچ بیچ میں۔ سب طرح کا کھانا بناتے تھے، جیسے مٹن ہے، مچھلی ہے، ترکاری ہے، دال ہے، چاول ہے، سبزی روٹی ہے، تلن ہے۔
रमजान में बुरहानपुर के शब रोज देखने से ताल्लुक रखते हैं। दिन वीरान तो रातें नूरानी होती हैं। सहरी के औकात में आमतौर पर लोग अपने घरों में तो सहरी करते ही हैं, लेकिन बुरहानपुर में सहरी के वक्त भी दस्तरखान को सजाने की रिवायत है। सहरी में बुरहानपुर में दूध के साथ फेनी खाने की रिवायत है। आपको हर घर के दस्तरखान पर दूध, शीरमाल और फेनी जरूर मिलेगी। इसके पीछे यहाँ के लोगों के अपने जवाज हैं और इनका मानना है कि दूध और फेनी के खाने से दिन आसानी से गुजरता है और तबीयत पर किसी किस्म का बोझ नहीं होता। जब घर के बड़े रोजा रख रहे हों तो ये कैसे हो सकता है कि बच्चों पर इसका असर न पड़े। वो बच्चे जिन पर अभी रोजा फर्ज भी नहीं हुआ है, वो भी ज़ौक़ व शौक़ के साथ रोजा रखते हैं और एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ ये दस्तरखान सहरी का, इफ्तार का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी होता है। क्या लेना पसंद करते हैं लोग? ज़्यादातर हम सहरी में हमारे यहाँ की मरगूब ग़िज़ा है खिचड़ी। ये हम खिचड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खिचड़ी है, चाय है, मलाई है, नान है, ये सब चीज़ें सादा चीज़ें, तेज़ चीज़ें कम इस्तेमाल करते हैं सहरी। इसमें लैलतुल क़द्र जैसी रात है और सहर भी हमें जो अता फरमाई, सहर के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी उम्मत के लिए नेमत है। सहर में सहर करो, चाहे एक खजूर से ही करो। हमारे यहाँ की मेहमान नवाजी जो है पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है और माह रमज़ान की रौनक जो है दूसरी जगह से कुछ यहाँ अलग से होती है। यहाँ हमारे दस्तरखान पे सब मिलेगा, लेकिन सब बहुत कम मसालों के, सादगी पसंद जो भी डिशेज़ है वो मिलेगी। जैसा हमारे बुरहानपुर में ख़ास एक रिवायत है कि हमारे हर दस्तरखान पे खिचड़ी मिलती है और खिचड़ी रोज़े के वक्त भी इस्तेमाल की जाती है, सहर में भी इस्तेमाल की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोजे रखेगी। कितने साल कितने रखे थे आपने? 6। अच्छा, रोज़े में आप क्या क्या काम करते हो? सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो? ज़्यादा काम नहीं करते, सिर्फ नमाज पढ़ते और पढ़ते। आम दिनों में और रमज़ान के दिनों में शेड्यूल तो सेम रहता है, पढ़ाई का, रोज़े का, नमाज का भी टाइम वही सेम रहता है। बस फ़र्क इतना रहता है कि दिन भर रोज़ा रहता है। तो जो काम आम दिनों में हम बिना रोज़े के करते हैं वही रमज़ानों में हम रोज़ा रख के करते हैं। बुरहानपुर रिवायतों का शहर है। यहाँ अब भी सहरी जगाने की रिवायत बरकरार है। मालिन भी एक लंबे अरसे से यहाँ सहरी जगाने का काम कर रही हैं। यहाँ के लोगों को भी मालिन भी का शिद्दत से इंतजार रहता है। उठो रोज़दारो, अल्लाह के प्यारो, जागो जागो। 40 साल से मैं उठा रही। ये कैसे जज्बा पैदा हुआ कि लोगों को जगाया जाए सहरी के लिए? लोगों को जगाती, अपने गरीबों को सेठ के आन जाती, सब मेरे गरीब झोली भर देते। मैं 2 बजे से निकलती तो यहाँ पर ये फूल के मदरसे में 3 बजे आती, उधर प्रकाश टाकिस खाने 4 बजे ख़त्म। इनका इंतज़ार इसलिए रहता है कि ये दरवाजे पर जो नॉक करते हैं ना लकड़ी से, तो पूरा उठाते हैं बाकायदा। लोग क्या करते हैं, कुछ फ़कीर पहले आते थे तो वो सिर्फ सदा लगाते थे और चले जाते थे, लेकिन ये बाकायदा पूरा उठाते हैं जब तक कि कोई अंदर से आवाज़ नहीं देता, जब तक कि आती नहीं है। तो ये इनके उठाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये बेफिक्री रहती है कि कैसे भी सो जाओ, बड़ी भी आएंगे तो उठना ही उठना है। वो खुद उठाएंगे लकड़ी से अपने दरवाजे को खटखटा कर, बराबर तो उनका इंतज़ार रहता है हमको। वहीं दूसरी जानिब दुकानदार और होटल के मालिक रोजेदारों की अफ्तार और सहरी के लिए खास एहतमाम करते हैं। रोजेदारों के शौक को देखते हुए दुकानदार रमजान के 15 दिन पहले से ही बेकरियों में शीरमाल बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रमजान में बुरहानपुर में नान और शीरमाल का बड़ा कारोबार होता है। ये नान और शीरमाल सिर्फ बुरहानपुर में ही इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, बल्कि निमाड़ के अलावा महाराष्ट्र के बाज़ इलाकों में भी इसकी सप्लाई रहती है। बुरहानपुर में जो सहर इफ्तार के लिए दस्तरखान बनता है, उसमें जो नान चलती है हमारी शीरमाल स्पेशल नान, वो हम बनाते हैं सर। और हमारे यहाँ शहर में ज़्यादा मकबूलियत है उसकी। स्पेशल नान जो शीर नान भी बनाते हैं हम, वो रोज़ा सर 25 रोज़े दिन बनती है। और जो रेगुलर जो बनती है महीना भर, वो भी स्पेशल नान बनती है और वो भी काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ। इस बार हमने अपने रोज़ादारों के लिए चिकन महाराजा, बटर चिकन, चिकन अफ़गानी, चिकन हैदराबादी, ये सब तैयार किया स्पेशल में। चिकन फारूकी, चिकन सुल्तानी,
बनाया। थोड़े बहुत फ्रूट्स ले लेते हैं, शीर माल लेते हैं जो कि बुरहानपुर की स्पेशलिटी है यहाँ पे शीर माल, तो वो भी ले लेते हैं। और उसके अलावा जिसको पराठा लेना हो, बिकॉज़ घी में भी गुड फैट्स हैं कुछ अपार्ट फ्रॉम बैड फैट्स, लेकिन घी भी लेना ज़रूरी है, 1 चम्मच दिन का बहुत ज़रूरी है। तो घी के पराठे लेते हैं सब, चाय लेते हैं, थोड़े से फ्रूट्स लेते हैं, थोड़े से सुन्नत के तरीके पे इंशाल्लाह चलने की कोशिश करते हैं। सुबह तो सहरी में जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि सहरी करनी पड़ती है। सहरी में जितना ज़्यादा लाइट हो सके वैसा खाना खाना चाहिए, बिकॉज़ अभी गर्मी ज़्यादा है तो फिर एसिडिटी, फिर रिफ्लक्स होता है लोगों को, तो लाइट खाने से शुरुआत करें। देन उसके बाद और हेल्दी लें, जितना हेल्दी हो सके, लाइक शुगर प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए, ऑयल अवॉइड करना चाहिए और हेल्दी स्टार्ट लें। फिर उसके बाद फिर आप कुरान पढ़ें, क्योंकि कुरान जितनी तिलावत हो सकती है उतनी तिलावत करनी चाहिए रमज़ान में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है और आज हम मौजूद हैं आपके शहर बुरहानपुर में। नाज़रीन, बुरहानपुर एक तारीख़ी और तहज़ीबी शहर, और जब माह रमज़ान की बात हम करते हैं तो यहाँ पर वो 350 मसाजिद जहाँ पर फर्जंदान तौहीद अपनी इबादतगाहों को अपने सजदों से सजाते हैं, यहाँ की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है। इबादत और बुरहानपुर में किस तरह का ख़ास इंतज़ाम किया जाता है ये तो आप आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले से छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, आज ये टीवी की टीम बुरहानपुर में मौजूद है। बुरहानपुर वो तारीख़ी शहर है जिसे मदीनतुल औलिया के नाम से याद किया जाता है। इस छोटे से शहर में अगर हम मसाजिद की बात करें तो इनकी तादाद 350 से ज़्यादा है, और जब माह रमज़ान आते हैं तो यहाँ के फर्जंदान तौहीद अपनी इबादतगाहों को अपने सजदों से सजाते हैं। माह रमज़ान में बुरहानपुर में किस तरह का ख़ास माहौल होता है, आइए डालते हैं एक नज़र। माह रमज़ान अल्लाह का पसंदीदा महीना है। ये वो महीना है जिसे अल्लाह ने अपना महीना करार दिया है। ये वही महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया था। कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए रहनुमाए हिदायत है। यूँ तो साल के 11 माह बंदा मोमिन 5 वक्त की नमाज अदा करके अपने रब का शुक्र अदा करता है, लेकिन माह रमज़ान की इबादत और सवाब को अल्लाह ने और दिनों की इबादत से 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सवाब करके अपने रब का कुर्ब हासिल करे। इस मुबारक महीने को अल्लाह ने अपना महीना करार दिया है, इसलिए बंदा मोमिन की यह ख्वाहिश होती है कि इस माह में इससे ऐसा कोई काम सरजद ना हो जिससे इसका रब इससे नाराज हो। उलमाए दीन का मानना है कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि इसके जरिए इस्लाह मुआशरा का अजीम काम लिया जा सकता है, और जब इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो इसके अंदर आला सिफात पैदा होती है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। दूसरे पारे में अल्लाह जल्ले शानहू इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतियों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तो ये जो तत्तक़ून का लफ्ज़ आया है ये मुत्तक़ी बनने के लिए कि जब इंसान दिन भर भूखा प्यासा अल्लाह तबारक व तआला के लिए रहेगा तो सिर्फ़ रोज़ा भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने आँखों का भी रोज़ा है कि आँखें गलत चीज़ ना देखे, हाथों का रोज़ा है कि हाथ गुनाह ना करे, पैरों का रोज़ा ये है कि पैर गुनाह की तरफ ना बढ़े। जब इंसान तमाम पूरा सारा दिन अपने रज़ाए इलाही के लिए भूखा प्यासा रख कर अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए अपना दिन गुजारेगा, और जब इफ़्तार के वक्त वो बैठेगा और दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी फ़ौरन दुआ कबूल कर लेगी। अल्लाह ने माह रमज़ान के फ़ज़ाइल के मुतालिक कुरान पाक में बहुत से अहकाम नाज़िल फरमाए हैं। माह रमज़ान कुरान के नुज़ूल के जश्न का महीना है। इसकी तालीमात किसी एक अहद, किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं बल्कि तमाम नौए इंसानी के लिए हैं। जिसने भी कुरान को सीने से लगाया और इसकी तालीमात पर अमल किया, इसने गोया दोनों जहां में कामयाबी हासिल कर ली। जब बंदा मोमिन सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर सजदे में जाता है तो इसे वो तमाम खुशियां मैसर आती हैं जो एक इंसान के तसव्वुर से बाहर है। रोजा दरअसल अल्लाह की उस इताअत का नाम है जिसमें बंदा मोमिन
अल्लाह के हुक्म पर एक खास वक्त के लिए हलाल चीजों को भी अपने ऊपर हराम कर लेता है, और जब वक्त अफ्तार का होता है तो अल्लाह के हुक्म से हलाल चीजों से अफ्तार करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है और इसकी बारगाह में सरबसुजूद होकर अपने गुनाहों की तौबा करता है। माह रमजान में अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा पर नमाज और रोजे की अदायगी के साथ ज़कात और फित्रे की अदायगी का भी हुक्म दिया है, ताकि वो लोग जो गरीब और नादार हैं इन्हें भी खुशी के मौके हासिल हो सके। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलुहा रहमतुन व औसतुहा मगफिरतुन व आखिरुहा इत्कुम मिन्ना, कि पहला जो अशरा है यानी कि 10 दिन, अव्वलुहा रहमतुन, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पहले के 10 दिन अशरा जो पहला अशरा है वो रहमत का है, व औसतुहा मगफिरतुन, और दूसरा अशरा जो है वो मगफिरत का है, व आखिरुहा इत्कुम मिन नार, और जो तीसरा अशरा है तो ये आग से आज़ादी का है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ान मुबारक का ये जो महीना है बड़ा बाबरकत महीना है, और इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी की सारी आसमानी किताबें जो है इसी माह मुबारक में नाजिल फरमाई। फितरत तो ये है कि जब इंसान के पास अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल दौलत दिया तो इंसान अपना उसका फ़ितरा निकाले। ज़कात अलग है, फ़ितरा अलग है। इंसान फ़ितना उसके एतबार से निकाल ले, जो उलमा इकराम ने जो मसाइल के एतबार से बताया है, 1.25 किलो गेहूँ उसके एतबार से है। और फ़ितरे का मसाला ये है कि भाई इंसान जैसा नमाज के ईद की नमाज के जाने से पहले पहले अदा कर दे, और अगर किसी मजबूरी की और किसी उज़्र के बिना पर अगर वो अदा नहीं कर पाया तो उसको चाहिए कि नमाज ईद के बाद वो फौरन फितरा अदा करे। बुरहानपुर को बाबे दक्कन, दारुस्सुरूर और मदीनतुल औलिया के नाम से तो सभी जानते हैं, लेकिन ये मस्जिदों का भी शहर है। इस छोटे से शहर में 350 मसाजिद के बावजूद माह रमजान में नमाजियों की इतनी कसरत होती है कि मसाजिद अपनी तंग दामनी की शिकायत करती है। रमजान में नमाजियों की कसरत जिस तरह से होती है, इसका असर साल के दूसरे महीनों पर भी देखने को मिलता है। बंदा मोमिन माह रमजान को मुसलमानों के लिए ट्रेनिंग पीरियड मानते हैं, इसलिए इस मुबारक महीने में अपने शब रोज का ज्यादा से ज्यादा वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगाते हैं। नमाजियों के इस रूह परवर मंजर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। माह रमजान में बंदे मोमिन न सिर्फ दिन भर रोजा रखकर अल्लाह की हम्द व सना करता है, बल्कि इसको आम दिनों की इबादत से अलग हटकर 20 रकत नमाज तरावीह भी अदा करनी होती है। लेकिन जब बंदा मोमिन अल्लाह से दिल लगाता है तो ये 20 रकत नमाज तरावीह इसे ग्रान नहीं गुजरती, बल्कि वो अपने रब के कुर्ब की लज्जत से सरशार होता है। गर्मी का मौसम और 15 घंटे का रोजा भी अकीदतमंदों के जज्बे को सर्द नहीं कर पा रहा है, बल्कि बंदा मोमिन और ज्यादा जोश और अकीदत के साथ रमजान के तमाम मामूलात को अदा करता है ताकि इसका रब इससे राजी हो जाए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि ईमान वालों तुम रोज़े रखो, और तुम जो रोज़े रखोगे तो रोज़े रखने की बुनियाद के ऊपर तुम्हें मैं अपना महबूब बना लूँगा। कि ए ईमान वालों तुम पर हमने रोज़े फ़र्ज़ किए जिस तरह दूसरी कौमों पर हमने रोज़े फ़र्ज़ किए थे। जब तुम रोज़े रखोगे तो लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़े रखने की बुनियाद पर तुम परहेज़गार बन जाओगे, और जो बंदा परहेज़गार होगा अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना लेगा। तो रोज़े रखे इसलिए जाते हैं कि ताकि हम अल्लाह के महबूब बन जाएँ। भाई अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस माह के अंदर हमें पूरा का पूरा वक्त जो है इबादत में, ज़िक्र में, तिलावत में लगाना चाहिए। और रोज़ा जो है वो जन्नत का गहना है। रोज़े के अंदर आदमी गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाता है, और रोज़ा एक ऐसी चीज़ आदमी उसके अंदर गुनाह से बचता है, झूठ से बचता है, ग़ीबत से बचता है, और उसके अंदर एक सच्चाईयत आ जाती है रोज़े के अंदर रखने के बाद में। बुरहानपुर की मसाजिद में नमाज तरावीह के दौरान तस्बीह पढ़ने का रिवाज है। ये तस्बीह नमाज तरावीह की हर 4 रकात के बाद पढ़ी जाती है। पहली 4 रकात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तस्बीह पढ़ी जाती है। इसके बाद हर 4 रकात में खुलफाए राशिदीन के नाम की तस्बीह पढ़ी जाती है। इस तस्बीह के पढ़े जाने के पीछे क्या मकसद कार फरमा है, आप यहीं के लोगों की ज़बानी सुनिए।
إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا بار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. یہ بزرگوں کا کیونکہ شہر ہے، اس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے. کئی باتیں یہاں وہ ملتی ہے جو دیگر جگہوں پر نہیں ملتی، کیونکہ یہ بزرگوں کی قائم کردہ باتیں ہیں اور اس میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہی بیان ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی. اور چونکہ بزرگوں نے کسی حکمت کے تحت اس کو قائم کیا ہوگا، اسی سلسلے کو آج تک جاری رکھا گیا ہے. برہان پور کیونکہ تہذیب و ثقافت کا شہر ہے، کئی رسومات یہاں پر اپنی ایک ہے. اس میں تسبیح کا بھی ایک رسم ہے، جس میں جو تراویح میں مخصوص طور پر ہر 2 رکعت میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اس میں ایک اختصار سے پڑھتے ہیں، لیکن ہر 4 رکعت میں طویل ایک تسبیح ہوتی ہے، جس میں پہلی 4 رکعت کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا. اس کے بعد دوسری جو 4 رکعت ہوگی اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا. پھر اس کے بعد جو 4 رکعت ہوگی اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر 4 رکعت کے بعد میں جو ذکر ہوگا وہ عثمان غنی، اور اگلی 4 رکعت میں حضرت علی ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے. اس طرح تسبیح کا ایک یہ مقصد جو ہو سکتا ہے کہ 4 رکعت میں تھوڑا آرام ہو جاتا ہے. تمام نمازی جو ہے مصلیان وہ تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تیار تازہ دم ہو کر اگلی 4 رکعت کی تیاری کرتے ہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم موجود ہیں آپ کے شہر برہان پور میں. ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے برہان پور میں کون کون سے خاص بازار ہیں جہاں پر ماہ رمضان میں خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن اس سے پہلے سے چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام رمضان کی رونق ہے. ناظرین، پروگرام کے سلسلے میں ہم آپ کو دکھائیں گے برہان پور میں رمضان کے بازار کس طرح سے سج کے تیار ہوا ہے. ہمارے پیچھے جس بازار کو آپ دیکھ رہے ہیں برہان پور کا اقبال چوک بازار کہلاتا ہے، جہاں پر رمضان میں کچھ خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے. ناظرین، آئیے پروگرام کے سلسلے میں آپ کو لے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ برہان پور میں رمضان کی رونق ہے کس طرح کی. ماہ رمضان کی بات ہو اور عید کی تیاریوں کی بات نہ کی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رمضان میں عبادت کے ساتھ عید کی تیاریاں بھی اہم حصہ ہوتی ہیں. برہان پور کے دکانداروں کو عید کے بازار کا سال بھر انتظار رہتا ہے. برہان پور میں عید کے لیے کچھ خاص بازار سج کر تیار ہیں. ان میں چوک بازار، چھیپا بازار، اولیاء مارکیٹ، سبھاش چوک، خانقاہ مارکیٹ کے نام قابل ذکر ہیں. کہنے کو مہنگائی ہے، لیکن بہت سے دکانداروں کو اس مہنگائی کے باوجود اچھے بزنس کی امید ہے. اسی امید پر دکانداروں نے اپنی دکانوں پر ہندوستان کے مختلف شہروں سے سامان لا کر اپنی دکانوں کو سجایا ہے تاکہ خریدار ایک بار دکان پر آنے کے بعد بغیر خریدے ہوئے واپس نہ جا سکے. یہ تو سر یہ دیکھا جائے تو سورت ہے، احمد آباد ہے، بامبے ہے، کولکتہ ہے، اور کچھ پیٹرن فرق آباد کے بھی ہیں. اس میں کیا ہے، جیسے ایکچولی صحیح معنوں میں ڈائمنڈ گلا اور فلنگ کام ہے جو ورکنگ ہوتی ہے، ورکنگ والے پیٹرن زیادہ چل رہے. ڈائمنڈ میں اتنا نہیں پیٹرن اٹھ پا رہا ہے، اور استر میں کچھ پیٹرن چل جاتا ہے. استر میں فینسی سے فینسی آئٹم جیسا لانگ ٹائپ میں ہو گیا، چوڑی دار میں ہو گیا، گھیر والے میں ہو گیا، یہ پیٹرنوں میں بہت پیٹرن چل رہے ہیں. جی انشاءاللہ خریدار آئیں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے. فل ویرائٹی مال بھی ہے، لیکن ابھی تھوڑا رسپانس نہیں مل رہا ہے. مال تو ہمارا بامبے، احمد آباد، سورت سب جگہ سے آتا ہے. اس بار ڈیمانڈ زیادہ ہے، تھوڑا لیٹسٹ فینسی سوٹ وغیرہ ہے، ڈریس مٹیریل ہے، کاٹن ہے، بہت کچھ ویرائٹی ہے. جی ابھی اس بار تو انشاءاللہ پیجامے کرتے کی بھی تیاری ہے اور پینٹ شرٹ کی بھی تیاری ہے. انشاءاللہ گراہک آئیں گے تو لے کر ہی جائیں گے. کہاں سے مال منگوایا آپ نے؟ یہ اندور اور بامبے سے. ہم نے تو یہ زیادہ کرتا ہم بامبے سے ہی لاتے ہیں، اور یہ مال جو بھی ہے پرنٹڈ لائننگ، آج کل اس سال زیادہ پرنٹڈ زیادہ چل رہا ہے، وہ ہم نے زیادہ لائے ہیں. پچھلے سال سے اس بار الگ کیا کرنے کی کوشش کی؟ اس بار تو صرف یہ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا مال بکے. کوشش تو ہماری یہی ہے.
नहीं, इस बार तो ऐसा है कि हमने अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैरायटी मंगाई। एक्शन है, लखानी है, रेड चीफ है, सभी कंपनियों का हमने कलेक्शन किया और ईद की हमारी सेल सभी उससे ज़्यादा अच्छी रहती है, इसलिए हमारे को इस सीज़न पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आमतौर पर मुल्क के दूसरे शहरों में माह रमजान के आखिरी अशरे में बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन बुरहानपुर में रमजान के पहले अशरे से ही खरीदारी शुरू हो जाती है। इसके लिए रोजेदारों के अपने जवाज हैं और इनका मानना है कि आखिरी अशरे के आते आते अच्छे माल छट जाते हैं, इसलिए वो पहले ही खरीदारी कर लेते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अल्लाह ने आखिरी अशरे में शब कद्र रखी है, इसलिए वो आखिरी अशरे को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगाना चाहते हैं। बुरहानपुर में ईद के मौके पर खवातीन में सबसे ज्यादा डिमांड सिल्क के कपड़ों पर सीप मोती वर्क्स जरी जरदोजी से बने हुए कपड़ों की है, तो मर्दों में पाजामा और कुर्ते की डिमांड है। मैं तो यही चाहूँगा कि इस बार जो हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं जो माहौल है, ईद जो आए इस बार की, वो तमाम मुसलमानों को एक कर दे और सब मिलजुल के खुशियाँ मनाएं। और ईद के दिन जब हम निकलें, मस्जिद के लिए निकलें, तो लगना चाहिए एक, मैं समझता हूँ कि ये लगना चाहिए हम में एक इत्तेफाक, इत्तेहाद जो आज हम देख नहीं रहे हैं, वो होना चाहिए। मैंने पिछले साल 28 रोजे रखे थे, इंशाल्लाह इस बार पूरा 30 रोजे हुए हैं। इस बार ईद में क्या पहनोगे, किस लिए? इस बार ईद में मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा, नमाज पढ़ने जाऊँगा कुर्ता पजामा। अब तक ईद की क्या क्या तैयारी कर ली? बहुत कुछ तैयारी कर ली। अच्छा लग रहा है। कितने रोजे हुए अब तक? 3 पूरे हुए। अच्छा लग रहा है। कुछ तैयारी की ईद की आपने? जी। क्या क्या? सब कपड़े वपड़े सब चीज़। इस बार क्या पहनेंगी आप ईद में? लाचा। ये तो अपने अपने तबीयत की बात है, जब चाहे जब खरीद लो, अपनी अपनी मर्ज़ी का सौदा है ये तो। और शुरू से जो तैयारी होती है वो बहुत बेहतर होती है, आखिरी में क्या तैयारी करेगा आदमी। खास इसलिए तैयारी कर लें, कुर्ता पजामा पहनेंगे और जूता देखने आए थे, जूता पसंद आ गया, ले लिए। और आसी असला चल रहा रमजान था, इसलिए तैयारी चालू है हमारी। ईद की तैयारियों की बात हो और खुशबू के साथ टोपियों का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है? इत्र फरोशों ने जहां मुल्क और बैरून मुल्क से इत्रियात का एक बड़ा कलेक्शन जमा कर रखा है, वहीं बाजार में मुख्तलिफ अकसाम की टोपियों की भी भरमार है। बुरहानपुर के बाजार में इत्र की वैरायटी के साथ परफ्यूम की भी बड़ी वैरायटी देखने को मिल रही है। इत्र फरोशों ने कुछ खास इत्रियात के मजमुए भी तैयार किए हैं। गर्मी के साथ महंगाई भी इस बार देखने को मिल रही है, इसके बावजूद दुकानदारों को बाजार के अच्छे जाने की उम्मीद है। इंडोनेशिया, बम्बई, अजमेर शरीफ, ऐसे सब तरफ के आके यहाँ पे मेंटेनेंस होकर सब बिकती है, हर क्वालिटी की आती है। बस ज़्यादातर सफ़ेद रहती है और कड़क सफ़ेद और परकाती टोपी सुन्नी जमात की है ना, तबलीगी जमात की भी बिकती है सफ़ेद वाली कड़क में, हर क्वालिटी की बिकती है, ऐसा कुछ नहीं है उसका। इतर तो बस कोई सा भी लो, आजकल तो कोमल हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा बस छोटा आइटम खरीदता है। हाँ, इत्र है, टोपी है, रुमाल है। क्या नया है इत्र में? क्या नया है इत्र में? बहुत से आइटम है नए, जैसे कि वो जन्नत फिरदौस है और सुल्तान है, वाइट मुस्क है, और भी बहुत से नए नाम हैं। तैयारियां तो रमज़ान मुबारक की रमज़ान से पहले ही शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन टोपियों का और इत्र का एक ख़ास जुनून होता है। जिस तरह नमाज का जुनून होता है, इस तरह इत्र और टोपियों का भी जुनून होता है। इंडोनेशिया की टोपी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मशहूर है और अच्छी नायाब टोपियाँ होती हैं इंडोनेशिया की। वो टोपी वो मुलायम टोपी होती है, उसको जेब में रखने वगैरह में कोई परेशानी नहीं होती। चलो, रमज़ान महीने के अंदर टोपी और इत्र का ज़्यादा हो जाता है, अब चलन हो जाता है, इसलिए ज़्यादा का इत्र लगाते हैं लोग। भीड़ भीड़ के खड़े रहते हैं तो अलग अलग किस्म की खुशबू लगा के जाते हैं और उसमें खुशबू से ज़रा और ज़्यादा महकता आदमी और अच्छा लगता है। और अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के जाता है, अच्छी अच्छी टोपी पहन के जाता है, अच्छे से अच्छा इत्र लगा के जाना चाहता है, क्योंकि मैं इबादत करूँ तो अच्छी तरह से करूँ अल्लाह की तरफ। इत्र में जो रेगुलर चलते हैं ज़्यादातर हमारे पास, उसमें पिछली बार जो वैरायटी शॉर्ट हो गई थी, तो इस बार उसमें वैरायटी हमने सब बढ़ाकर लाई है। और जैसे जन्नतुल फिरदौस है, जन्नतुल नईम है और वाइट लंदन वगैरह, ये जो इत्र पिछले साल नहीं थे, वो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लाने की हमने कोशिश की है।
नाज़रीन, मदीनतुल औलिया से माह रमज़ान के शब रोज़ पर मबनी ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ नाज़रीन, कल सुबह 3 बजे हमारा ख़ास प्रोग्राम लाइव सहरी टाइम देखने ना भूलें। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हो चला आपसे रुखसत होने का। कल इंशाअल्लाह किसी एक और नए शहर के साथ आपकी खदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। रमज़ान आया,